Invite Honi to start the workshop. Honi, can you please Yes, sir. start? Thank you so much, sir. Good evening, dear parents. It's such a delight to see you all here, and even more to have you accompanying your children with yourself. I cannot have enough gratitude expressing how happy I am welcoming all of you on behalf of Global Discovery School here. आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, let me start by inviting Nishant Sahu sir, who is the Chief of Franchise Operation and Business Development Head India at Global Discovery School, to share his valuable insight about the workshop. Over to you, Nishant sir. Thank you so much, ma'am. So, hi, good evening, all parents, teachers, GDA team, LMM team. I welcome all for this wonderful sessions to all of you. So, all of you have already attended this workshop before by the name Raise Them Right. Okay. So now today, something big going to happen. And what is that happen? We will be telling you about LMM. So I invite all the parents of different schools to attend this session. And also I would like to tell what we are going to do today. So we are going to discuss about LMM program. What is LMM program? How we are going to implement in all the schools. Okay. Then we will be talking about the 5 pillars of LMM. What is 5 pillars and how they all are going to help your kids and how this thing are going to change. We will be talking about first pillar, which is self-awareness. Then we'll be talking about the parent app. The parent app demonstration will be done by technical team. How parent app can be used by student, parent, how it will work, how the pillars, task cards are going to assign, how the homework will be assigned to kids, student by by the team. Then we'll be talking about the life coaches, those who all are present here conducting the workshop, how you all can be reach out to them and frequently how many times. So these all things we are going to do that. So I'll not take much of your time. I would like to invite Mr. Pankaj Bindra sir, who is the founder and a managing director for us. So over to you, Pankaj sir. So has Pankaj sir joined? Solomon? We're just waiting for him. He should be joining in a minute. So meanwhile, I would like to invite Nikhil Jain sir, who is a Chief Executive Officer for Global Discovery School, to share his valuable inputs about LMM. He is basically an IITian and very good background in education industry. So over to you, sir. Thank you for kind introduction. Good evening, parents. This is not an ordinary Saturday evening. This is a special Saturday evening for all of us because we are going to do something big today. Okay, because as parents, as educators, we all want our children to be happy, successful, doctors, engineers, scientists, whatnot. Okay, everything we are dreaming of day in and day night, right? But there has to be some recipe. The something needs to be done to achieve that. Okay, and that has to happen within us, within our children, and that it will also happen to the world. But हमें ये सब करना कैसे, हमें अचीव बहुत कुछ करना है. हम सब पूरी कोशिश करते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, हमेशा सक्सेसफुल हों, but how to do that? Our team is being researching about this for a long time, and today what we are going to, we have also presented our research before this and shared this with you. But today is the stepping stone that we will all enroll into this and we will start doing this now itself. Okay. So what needs to be done?
we all talk about growth mindset, you know, बच्चे को grow करना चाहिए, सबको grow करना चाहिए. But what are the barriers that holds back? Okay, what pulls us back? उसको कैसे हमें रिमूव करना है, कैसे उसको ओवरकम करना है, कैसे वो सारे चैलेंजेस हमें बच्चों को बच्चों के माइंड से हमें वो ओवरकम करने हैं, और बच्चों को कैसे सपोर्ट देना है कि बच्चे अपनी लाइफ को डिजाइन कर पाए टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, to become the best version of themselves. What's the best thing that they can do in life, right? Can you imagine Sachin Tendulkar becoming Abdul Kalam and Kalam becoming Sachin Tendulkar? Of course not. Sachin is Sachin, and we all love Sachin as Sachin Tendulkar, and we all love Sir APJ Abdul Kalam as APJ Abdul Kalam, and we respect them, and that is what we need to do now. So first thing is we have to remove those barriers and give a support, a push, you know, and become a sound wall for our kids. Okay, that's one. Second, develop those qualities. Then when they are on the top of the world, top of whatever they are doing, they still keep those qualities, humbleness with them, and keep leading and keep serving for the noble cause in this world. And the third most important is that if these first two steps are done, definitely third step will happen, and that is our children will dream big. The way we are dreaming big, they will also keep dreaming bigger and bigger, and probably one day they will do something really, really amazing, which is beyond our imagination, right? And this is what we are going to witness today. So once again, I want to welcome all the parents. This is not an ordinary Saturday evening. This is a big Saturday. This is a different, this is special, and special for all of us. We as a family, you parents and we as educators, we become that family and grow our children and raise them right. So I want to welcome, I want to invite parents to participate, stay in this conversation, in presentation, and take the benefit, most benefit, whichever you can from this evening, this 1 hour. Ready? So I want to ask parents, are you ready? Can you express by thumbs up like this, or in expression from your laptop? Are you ready, parents? Okay, I want to, if Pankaj sir has joined, I want to invite him, else I would like to post him. I would like to invite Mansoor sir, who is leading the entire project and leading the team of life coaches, that how do we raise our children right. Over to you. Thanks. Pankaj sir, if you have joined, if you can hear me. Chala ma'am, just check if he has host rights. Yeah, he is just joining in. Meanwhile, if you can start. Okay. Yes, Mansoor sir, you may start. Just a minute. Pankaj sir will be actually joining in 2 minutes. He was facing some technical issues from his end. So in the meanwhile, before we get started, I just would like to actually quickly give an introduction about Life Marks program जो है वो क्या है. So हम सब जानते हैं कि the meaning of education has been restricted to books, and children often don't have opportunities to learn from their experience. कुछ जैसे अगर कुछ सीखना है तो how to make decisions, managing social relationships, भावना या feelings को कैसे manage कर सकते हैं, being compassionate towards others. ये जो abilities है वो widely upheld है society में, but और environment भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा regarded है, बहुत ज़्यादा respectful है.
बट ये हमारे सिलेबस में नहीं होता, एकेडमिक सिलेबस में ये सारी चीजें कवर्ड नहीं है, बट सोसाइटी जरूर एक्सपेक्ट करती है। लाइफ में मार्क्स प्रोग्राम मदद करता है बच्चों को टू अचीव द गोल्स बाय लर्निंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स, हाउ टू बी रेजिलिएंट इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। जब घर पे अगर कुछ झगड़ा हो रहा है या फिर किसी और बच्चे के साथ झगड़ा हो रहा है, तो हाउ टू पैच अप रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, खासकर जब वो डिफिकल्ट टाइम चल रहा है बच्चे की जिंदगी में। द एबिलिटी टू फील ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट द चाइल्ड हैज रिसीव्ड, एक्नॉलेजिंग द एफर्ट्स ऑफ द पेरेंट्स एंड द टीचर्स टू मेक देयर लाइफ बेटर। हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पेरेंट्स भी काफी हेल्प कर रहे हैं बच्चों को, और टीचर्स का कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट रहा है। तो ग्रैटिट्यूड कैसे इंस्टिल करें? हम एक ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि लाइफ में मार्क्स प्रोग्राम इज अ साइंटिफिक अप्रोच that empowers the child's temperament and attitudes and helps the child to achieve his ambitions. We will wait for 2 more minutes for Pankaj sir to join. Pankaj sir has joined, sir. Yes, so I call upon Pankaj sir to give some insight about the matter. Pankaj sir, over to you. Okay, I'm unmuted now. Thank you. Hello, everyone. What a wonderful large group of people at this beautiful evening. Where I am, it's a rainy evening. What brings you here? That's what, in my opinion, stands apart. You have come here for your child. You have come here to understand something that is shaping our life in a profound way, in a very subtle manner. आप सब लोग जो आज आए हैं, ये एक बहुत बड़े कारण से आए हैं, और इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। आज साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि जो आपके हमेशा के सवाल, पेरिनियल क्वेश्चंस, मेरा बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, व्हाट विल द पर्सनैलिटी ऑफ माय चाइल्ड, why does my child do, why does the child doesn't listen, all these 50 questions have been deeply understood by science. लेकिन उसको जरा सरल करके, इजी करके समझाएं तो आपका बच्चा कैसे क्या बनेगा, वो समझने के लिए आप अपने चाइल्डहुड में जाइए। गो टू योर ओन चाइल्डहुड, अपने बचपन में जाइए, and you will understand that 70% of brain formation happens by age 12. Rest is automatic. I'll explain the word automatic. एक छोटा सा बच्चा 3 साल का नागपुर में पैदा हुआ, दूसरा छोटा सा बच्चा पैदा हुआ लेट अस से राजस्थान में पैदा हुआ। दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, बड़े हो रहे हैं, माँ बाप बहुत प्यार से बड़ा कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, उसके अंदर फोटो, जानवर, पक्षी, परियां। थोड़ा बड़ा होता है, 3 साल का होता है, तो राजस्थान वाला बच्चा और नागपुर वाला बच्चा पहली बार घर से बाहर थोड़ा दूर निकलते हैं पापा मम्मी के साथ, पापा के साथ, और पहली बार उन्होंने डॉग देखा। राजस्थान वाले लिटिल चाइल्ड को बड़ा अच्छा लगा, क्या बढ़िया जानवर है, जैसे यूट्यूब में वीडियो में देखा था उससे भी बढ़िया, क्या झूम रहा है, मुझे से दुम हिला रहा है, ऐसे मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, राइट? सो हिज ब्रेन गॉट वायर्ड विद एन ओपिनियन अबाउट डॉग एंड हिम, लव फॉर एनिमल्स। ये होते अच्छे हैं, कभी कभी भौंकते हैं, बट व्हेन द नागपुर चाइल्ड approached the dog, for some reason dog was hungry or in a bad mood or irritated, and he just ran, started barking and rushing at him, and उसकी मम्मी ने उसको बचाओ बचाओ, और उसके चेहरे पर एकदम डर और एकदम मेरे बच्चे को बचा लो, कुछ करो, इस डॉग को रोको, और डॉग का मालिक स्टॉप स्टॉप। और इसको बोलते हैं माइल्ड ट्रॉमा, हल्का सा दिल में एक जो कहते हैं
इसके लिए हिंदी में एक शब्द है, एक डर बैठ जाता है, और उसकी भी दिमाग की वायरिंग हो गई एट द एज 3, एज 4। ये डॉग्स, एनिमल्स, जंगल्स, ये किताबों में ठीक है, लेकिन बड़ी खतरनाक चीज है, ये जंगली हैं। अब क्या होगा? राजस्थान वाला चाइल्ड वो और डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस के साथ खेलते खेलते बड़ा हुआ, फियरलेस। बाद में डॉग्स ने कभी बार्क भी किया, हॉर्स ने गिरा भी दिया, देन ऑल्सो ही अंडरस्टूड दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया था, थोड़ा एक्सपीरियंस वाइडन हो गया था, and he will be for his whole life comfortable with animals, this, that. नागपुर वाला चाइल्ड, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना जू, नहीं नहीं उस डॉग को दूर रखो, नहीं नहीं आई डोंट वांट टू टच द काउ, आई डोंट वांट टू राइड द एलिफेंट। सो धीरे धीरे उसका डिस्टेंस बढ़ता गया, एंड ही विल नॉट और शी विल नॉट इमर्ज एज एनिमल लवर, she will not be super excited about that, but उसका इंटरेस्ट डांस, म्यूजिक, पढ़ाई कहीं और चला जाएगा। हर बच्चा हर एरिया में परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अब ये तो नॉन जीडीए स्कूल के चाइल्ड की बात कर रहा था मैं। लाइफ में मार्क्स प्रोग्राम में इसको ऑटोमेटिक कहा जाता है। ऑटोमेटिक, जो दिमाग की अंदर की वायरिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है। By age 12, 70-75% brain is already formed. इतना स्ट्रॉन्ग वायरिंग हो जाता है। Then that decides, जिसने तारीफ करी वो काम हम ज्यादा करते हैं तो उसमें अच्छे हो जाते हैं, और हम कहते हैं भगवान ने मुझे गिफ्ट दी है, आई एम गुड इन क्रिकेट। ऐसा कुछ नहीं होता। जहां पे झटका लग गया उससे हम कतराते हैं, वहां जाते ही नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते, मैथ्स नहीं करते, फिर हम मैथ्स में पीछे रहते। मैथ्स तो हर आदमी कर सकता है, ईच ऑफ यू ऑन दिस कॉल कैन डू मैथ्स, लेकिन मैथ्स का मतलब है मेहनत। करते रहो करते रहो, कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग, इवेंचुअली यू विल गेट गुड एट मैथ्स। मैथ्स इज नथिंग बट जितनी मेहनत उतना मैथ्स। So in global discovery schools, we understand this advancement in sciences very well. Life में Marks program is actually about helping a child understand. It's okay if their dog barked at you, that's okay. Bring no significance to it. That is the point we are making. There are scientific techniques to make sure that the child's orientation doesn't get hampered, retarded, restricted, limited by the small traumatic experiences of early childhood, mid-age, teenage, and so on. ये बहुत scientific concepts हैं। आइए emerge into this. कोविड आया, कोरोना आया, LMM टीम में मैंने निराशा, दुख नहीं देखा। We embraced death, we embraced illness, we embraced whatever it is as अब ये सिचुएशन है, अब इसका क्या करना है, that's how. And I have seen our teachers, you must have seen in the teachers a huge change. मेरी लाइफ में इतना बदलाव आया है कि अगर उस लाइन पे जाएंगे तो रात हो जाएगी. So I welcome you all to this very powerful science, and I am not at all telling you कि बच्चे के ऊपर डॉग बार्क करे उससे बच्चे को बचाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है मैंने. डॉग नहीं बार्क करेगा तो ट्रैक्टर आ जाएगा, ट्रैक्टर नहीं आएगा तो कोई ट्रक हॉर्न मार देगा, ट्रक हॉर्न नहीं मारेगा तो कोई कैट कूद जाएगी, कॉकरोच शर्ट में घुस जाएगा, वो नहीं होगा तो कोई मैथ्स की क्लास में कोई मस्ती करेगा बच्चे की, वो नहीं होगा तो साइंस में कुछ नंबर कम आएंगे, सब लोग हंस रहे होंगे उसके ऊपर, वो नहीं होगा तो कुछ और हो रहा होगा. So, and not just negative, even positive, as you must have seen in the headlines this week that US Open की जो lady है, she dropped out of French US tennis star, she dropped out of French Open because of her mind is not supporting her. जो जैसा दिमाग में sharpness से वो जीतती थी, वो sharpness उसकी खो गई, वो जीत नहीं पा रही है. She's clearly said, my mind
is not supporting me. मेरा mind जैसे जीतता था वो जीतना बंद कर दिया उसने. So toppers, gold medalist, लाइफ में मार्क्स टॉपर्स बनाता है, गोल्ड मेडलिस्ट बनाता है, एक गिफ्ट को उठाता है. So I will welcome you all to this session and I'll invite Mansoor sir to share the scientific research and bless the children of global discovery, bless the children of Life में Marks project. इसमें इमर्स कर दीजिए, इसमें सिर्फ मिठास, खुशियां और सक्सेस है. आपको किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा, और जो होगा वो सिंपली आपके अंदर जो छुपी हुई ताकत है वो बाहर निकल के आएगी. थैंक यू. Mansoor sir. Thank you, Pankaj sir. We'll be quickly moving on to start the workshop. I'll invite Nehmat ma'am. She is a practicing psychologist and life coach. She specializing in clinical psychology from National Forensic Science University. Nehmat ma'am, can you please start the session? Sure, sir. Thank you very much. आज हम यहाँ पे लाइफ में मार्क्स प्रोग्राम के बारे में बात करने आए हैं, पर उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं. क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, वो ज्यादातर घर पे ही हैं, वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहे, तो ये देखा जा रहा है कि बच्चे थोड़े ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, वो अपने पेरेंट्स की बात भी जल्दी नहीं मान रहे, और अगर उनके साथ उनके भाई बहन हैं उनके साथ भी ज्यादा लड़ाई है, और अपनी पढ़ाई पर भी उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे. तो इन सब चीजों का क्या हल होगा, और इन सब चीजों के बारे में भी बात करनी तो जरूरी है. तो मैं बुलाना चाहूंगी मिस होनी नायर, जो कि एक लाइफ कोच हैं, who specializes in clinical psychology from National Forensic Sciences University, कि प्लीज वो आए और मेरे इन सवालों का जवाब दें. ओवर टू यू होनी मैम. थैंक यू सो मच नेमत मैम. आपके सारे सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूंगी, और इन्हीं सारे सवालों का जवाब है LMM प्रोग्राम. LMM यानी लाइफ में मार्क्स. ये प्रोग्राम बच्चों में वो सारे स्किल्स डेवलप कराता है जो उनके जीवन को सरल बना सकते हैं, जैसे संयम रखना, दूसरों के हाव भाव को समझ पाना, सही निर्णय लेना, मुसीबतों का सूझबूझ से सामना करना और एक अच्छा इंसान बनना. Let us understand this with the help of an example. So, नेमत जी, क्या आप प्लीज स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे? All right, so okay, no problem. So हम इस एग्जाम्पल में मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव की फैमिली को देखेंगे. So आई एम श्योर कि मैं जैसे जैसे बोलूंगी आप उसे वो समझते जाएंगे, एंड अगर स्क्रीन आ जाती है सो वेल एंड गुड, हम उसे विजुअली देख भी पाएंगे. सो मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव जो है वो काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके बच्चे राहुल और रिया उनकी बात ही नहीं सुनते थे, आपस में झगड़ते रहते थे, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे. अब जैसे नेमत मैम ने बताया, स्कूल ना जा पाने की वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर के अंदर स्पेंड करने की वजह से ये होना तो जायज़ है. पर वहीं अगर घर में पॉजिटिव चेंज आ जाए, तो अगर माहौल में कुछ चेंज हो जाए तो कितना बेहतर होगा. अगर बच्चों का टाइम इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज में डाइवर्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपस में फाइटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा, है ना? जी हाँ, LMM प्रोग्राम के थ्रू राहुल और रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जैसे स्कूल में बच्चों को एकेडमिक्स, डिसिप्लिन एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड लर्निंग मिलती है, वैसे ही LMM प्रोग्राम से बच्चे लाइफ स्किल सीखते हैं, जो कि एक ब्रिज फॉर्म करते हैं between being able to achieve their goals and becoming healthy individuals. Let's see how does that happen. Ma'am, do you want me to present it? Yes. Yes. Honi, can you please go ahead from your end to present the slides? Sure. Will that be okay with you? Completely fine, sir. I'll do that. Okay. Just take a moment. Thank you so much, parents, for bearing with me. And here we have it. I hope it's visible to all. Is it visible? Yes, it is. All right.
जी, तो जैसे कि मैंने बताया, ये है मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स जो कि काफी रेगुलरली वो फेस कर रहे हैं उनके बच्चों के वजह से। सो अब आइए हम देखते हैं कि एलएमएम प्रोग्राम के थ्रू क्या अलग होता है। So the program is very well designed and divided into 3 broad steps, as you can see here. These steps will lead to a holistic development of the child. आइए एक एक कर इन स्टेप्स को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। Here we have among us Anubhav Motilal, who is a life coach specializing in clinical and counseling psychology from Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. अनुभव सर, क्या आप हमें एलएमएम प्रोग्राम के फर्स्ट स्टेप के बारे में बताएंगे? अनुभव सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? Chola ma'am, can you please unmute Anubhav? Yeah, sorry, I had Yes. trouble unmuting. थैंक यू होनी मैम, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको फर्स्ट स्टेप इसका। तो पहला स्टेप है कीपिंग द क्लीन स्लेट क्लीन। तो इसका मेन एम है बच्चों के मन के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकना। अब ये एलएमएम प्रोग्राम से कैसे पॉसिबल होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों को पोस्ट मेडिटेशन राइटिंग सिखाया जाएगा। पोस्ट मेडिटेशन राइटिंग में बच्चों को मेडिटेशन करने को कहा जाएगा और उसके बाद उनको उन थॉट्स के बारे में लिखने को कहा जाएगा जो उन्हें उस टाइम आ रहे थे। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि कितने सारे सक्सेसफुल लोग मेडिटेट करते हैं एंड उसको रेकमेंड करते हैं। वी आर गोइंग वन स्टेप अहेड एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग पोस्ट मेडिटेशन राइटिंग फॉर आवर चिल्ड्रन। ये सिर्फ उनके दिमाग को ही शांत नहीं करेगा बल्कि ये उनका सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ाएगा। एक तीर से दो निशाने। पोस्ट मेडिटेशन एक सोर्स भी होगा जिसके थ्रू हम बच्चों के मन में झांककर उनके नेगेटिव थॉट्स को पहचान पाएंगे जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ताकि उनको एडिक्वेट हेल्प दी जा सके इफ नीडेड। दूसरा सोर्स होगा डायरी राइटिंग। ये भी स्टेप 1 का एक पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बच्चों को डायरी एंट्री करना सिखाएंगे। हमें पता है कि कुछ बच्चों को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने में मुश्किल होती है, इसलिए हमने कुछ हिंट्स, प्रॉम्प्ट्स डिजाइन किए हैं जिनसे उन्हें आसानी होगी। इन हिंट्स का एग्जाम्पल है माय फादर इज डैश या फिर आई डिसलाइक डैश। ये बच्चों के सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सप्रेशन बढ़ाने का एक साधन होगा। हमारे एप्लीकेशन की स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका एनालिसिस करेगी और हमें बताएगी कि बच्चा सबसे ज्यादा किस बारे में सोच रहा है। वो इन थॉट्स को एक थॉट क्लाउड के फॉर्म में जनरेट करेगा ताकि हम आसानी से उन थॉट्स को पहचान पाएं। जितनी ज्यादा बार एक चीज लिखी गई होगी वो उतनी ही बड़ी प्रेजेंट होगी थॉट क्लाउड में। Whatever the child writes can be accessed by a team of experts. एक एग्जाम्पल से हम ये थोड़ा बेहतर समझते हैं। तो लेफ्ट पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, सब लेफ्ट पे है अवी का थॉट क्लाउड और राइट पे है टीना का थॉट क्लाउड। तो अवी के थॉट क्लाउड में जो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं वो है दिवाली, हैप्पी, लर्निंग, ऐसी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। और टीना के थॉट क्लाउड में दूसरी तरफ हमें दिख रहा है कि फ्यू फ्रेंड्स, लो मार्क्स, सैड, ऐसी चीज़ें हाईलाइट हो रही है, जिससे समझ आ रहा है कि टीना परेशान है एंड टीना को मदद की ज़रूरत है, जो कोई शर्म की बात नहीं है। एलएमएम प्रोग्राम के अंडर हम ये मदद उन्हें प्रोवाइड करेंगे ताकि हर बच्चे का खुश और सक्सेसफुल होने का चांस इक्वल हो। ये हम कैसे कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम इन बच्चों को काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक सर्टिफाइड लाइफ कोच लेंगे। इससे उनके मेंटल वेलबींग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, जिससे वो अपनी लाइफ पे फोकस कर पाएंगे। हम उन्हें ग्रुप सेशंस भी देंगे जहां बच्चे मिलकर अपने इश्यूज और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। इससे बच्चों को पता लगता है कि वो अकेले नहीं हैं और बच्चों में अपनापन और रिलेशंस भी बेटर होते हैं। इसके थ्रू म्यूचुअल लर्निंग ऑफ लाइफ स्किल्स भी पॉसिबल हो जाता है, विच मीन्स कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं।
कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, हम सबको पता है कि हम जैसे खुद से कम्युनिकेट करते हैं वो हमारी रियलिटी यानी वास्तविकता को भी डिफाइन करता है। जैसे अगर हम खुद को ये बोले कि मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा तो बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है, पर अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दे और खुद को ये बोले कि ये मैं अभी तो नहीं कर सकता पर मैं सीख जरूर सकता हूं, तो हमारे मोटिवेशन एंड बिहेवियर में काफी फर्क पड़ जाता है ना। बच्चे जब ये पॉजिटिव सेल्फ कम्युनिकेशन सीख जाएंगे तो फिर उनके जो बिहेवियर्स हैं वो और गोल ओरिएंटेड और पर्पसफुल हो जाएंगे। ओवर टू यू होनी। Thank you so much, Anubhav sir. With this, we come to step 2, which is planting abilities. As the word suggests, in step 2, we aim at instilling important life skills. बच्चों को पहले 5 pillars यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, ग्रिट, एक्सप्रेशन एंड कोलैबोरेशन, कंपैशन एंड डिसर्नमेंट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है थ्रू टास्क कार्ड्स। टास्क कार्ड्स मतलब फन एंड लर्न एक्टिविटीज, जो कि स्पेशली डिजाइन किए गए हैं बच्चों में ये सारे स्किल्स डेवलप कराने के लिए। ज्यादातर टास्क कार्ड्स को घर पर कंप्लीट करना है और कुछ होम सेटिंग्स में। बच्चे अगर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेहतर सीखेंगे, इसी उद्देश्य से इन एक्टिविटीज को डेवलप किया गया है। अब चलिए हम एक एक कर LMM प्रोग्राम के 5 पिलर्स के बारे में बेहतर जान लेते हैं। हमारे बीच मिस प्रियंका है जो एक लाइफ कोच है, pursuing her MPhil in clinical psychology from Amity University, गुड़गांव। प्रियंका मैम, क्या आप हमें LMM के फर्स्ट पिलर सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताएंगे? Yes, sure मैम। आज मैं LMM प्रोग्राम के फर्स्ट पिलर के बारे में बात करना चाहती हूँ। फर्स्ट पिलर है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको अवेयरनेस के बारे में बताती हूँ। अवेयरनेस मतलब क्या है? अवेयरनेस यानी जब आप किसी के बारे में देखते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्यान के देते हैं और समझता है। आइए इस उदाहरण को देखिए। इधर रिया स्कूल जाने के लिए चल रही है। इस बीच में उसने कुछ देखा और उस जगह पर ध्यान केंद्रित किया। वो समझ गए कि एक लड़की अपनी दादी को रोड क्रॉस करने में मदद कर रही है। रिया अवेयर है क्योंकि उसने वो देखा और उस पर ध्यान दिया। उसी तरह सेल्फ अवेयरनेस कुछ ऐसा है कि जब आप खुद को ध्यान देते हैं और आप खुद को समझता है, उसके लिए हम अपने फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस, बॉडी एंड बिलीफ के ध्यान देना है और समझना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेल्फ अवेयरनेस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन हम बेहतर जीवन के लिए कुछ प्रयास करने के जरूरी है। उसी तरह जैसे हम पेड़ को एक्स्ट्रा केयर देते हैं, पानी देते हैं, उसी तरह सेल्फ अवेयरनेस स्किल डेवलप करने के लिए कुछ एफर्ट्स करना भी आवश्यक है। एफर्ट्स लाइक spending some me time, practicing meditation, writing diary, and many other activities which will be introduced by LMM program. Next slide. आइए देखिए कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस ने राजू की मदद की। राजू एक 8 साल का लड़का है। वह हमेशा खुद से कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ। लेकिन जब उन्होंने LMM प्रोग्राम के मदद से सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स डेवलप होने के बाद उसने ध्यान दिया और सोच कि वह ऐसे क्यों महसूस कर रहा है, तो उसने सवाल करना शुरू कर दिया, जैसे मेरा दोस्त क्यों नहीं है, मैं किसी भी चीज में अच्छा क्यों नहीं हूँ। फिर बाद में उन्होंने अपने सवालों को जवाब पाया और महसूस किया कि उन्होंने कभी किसी से संपर्क नहीं किया और कभी भी कोई स्किल्स सीखने के लिए काम नहीं किया, और फिर फैसला किया मुझे लोगों से संपर्क करना शुरू करना है। स्किल्स डेवलप करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। इसी तरह सेल्फ अवेयरनेस ने बेहतर जीवन बढ़ाने में मदद की। I hope now you got a little idea about what is self-awareness.
We definitely did, Priyanka मैम. Thank you so much हमें इतनी बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है और वो कैसे ज़रूरी है. अब हम आते हैं हमारे सेकंड पिलर पे, जो कि है ग्रिट. नेमत जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि ग्रिट क्या होता है? नेमत मैम, आर यू एबल टू हियर मी? जी होनी, पहले आई हैड प्रॉब्लम अनम्यूटिंग माई सेल्फ, ऑलराइट. इसलिए ओके. सो जी, ग्रिट एक छोटा सा वर्ड है पर इसका मतलब बहुत बड़ा है. ग्रिट मतलब जब भी हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उस चीज की तरफ अगर कोई भी बीच में चैलेंजेस आए तो उसको भी सॉल्व करते हैं. राहुल की एग्जाम्पल से समझते हैं. राहुल एक बच्चा है जिसको मैथ्स में बहुत अच्छे ग्रेड्स चाहिए थे, तो उसने पहले सोचा कि वो कैसे ये कर सकता है. जब उसने एक प्लान बनाया, उसके बाद वो अपने क्लासेस अटेंड करने लगा. फिर वो सम्स भी सॉल्व करता था. उसने अपना एक टाइम टेबल बनाया था जिसके अकॉर्डिंग वो सम सॉल्व करता था, और अगर कोई डाउट हुआ तो वो नेक्स्ट डे क्लास में अपनी टीचर से पूछता था. Namit ma'am, are you there? Kindly bear with us. She is having some technical issue from her end. Okay, Honi, can you please take over the session until Sure, sir. Namat joins? Yeah. श्योर सर. सो जैसे कि नेमत मैम बता रहे थे ग्रिट के बारे में. सो ग्रिट वो चीज़ होती है जो हमें बच्चों में डालनी इसीलिए ज़रूरी है कि वो एक ज़रिया है जिससे कि हम उन्हें बता सकते हैं कि वो कैसे आने वाले सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकते हैं. कैसे ओवरकम करेंगे? वो अपने गोल की तरफ इतना निश्चय तरीके से, इतने प्लानिंग के साथ और इतनी प्रैक्टिस के साथ वो जब अपना गोल क्रिएट करेंगे तो उसके आने वाले ऑब्स्टेकल्स पे भी उनका ध्यान जाएगा और उनमें वो कैपेबिलिटी होंगी कि वो आने वाले सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सके. सो जैसे कि वो इस एग्जाम्पल से आपको बता रहे थे कि यूजुअली मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे हमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंपेयर टू ऑल द अदर सब्जेक्ट्स. बट यहाँ पे उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? सो उस बच्चे राहुल ने जो है वो पहले प्लानिंग की. प्लानिंग में उसने ये किया कि एटलीस्ट उसे एवरी डे कुछ नंबर ऑफ सम्स को सॉल्व करना ही है और दिन का कुछ टाइम उसे देना है. एंड देन फिर उसने मेक श्योर किया कि वो अपने टीचर से सवाल पूछे और फ्रेंड से डिस्कस करे. एंड फाइनली प्रैक्टिस करके ही वाज एबल टू अचीव ए ग्रेड. सो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एक प्लान बनाने के बाद उस बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया दैट ही कैन डू इट, एंड थ्रू द प्रोसेस ही वाज फाइनली एबल टू अचीव इट. So that was about grit. Now we have third pillar, which is expression and collaboration. I think Anubhav sir would be better in explaining us what exactly does this mean and how is it important. Sir, will you please take over? बिल्कुल होनी मैम. तो इस पिलर का मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों के सोशल स्किल्स को डेवलप करना. ये पिलर बच्चों को उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स को क्लियरली और अप्रोप्रिएट तरीके से एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है. और आज की दुनिया में जहाँ कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, इस स्किल को डेवलप करने की नेसेसिटी हार्ड टू इमेजिन नहीं है. और जी हाँ, जितना इम्पोर्टेंट है वर्बल कम्युनिकेशन को डेवलप करना, उतना ही ज़रूरी है बॉडी लैंग्वेज, अटेंशन एंड लिसनिंग को भी डेवलप करना. असली लीडर वो नहीं होता जिसकी बात सब सुन ले, पर असली लीडर वो होता है जो सबकी बात सुनने की और समझने की क्षमता रखता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये पिलर बच्चों को अलग अलग लोगों और
ग्रुप्स के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स डेवलप करने में और उनको बनाए रखने में बहुत हेल्प करेगा। जब बच्चा रिलेशनशिप स्किल सीख जाएगा तो ये ना ही उनके पर्सनल लाइफ में फायदा देगा बल्कि उनके रिलेशनशिप्स और वर्क लाइफ में भी झलकेगा। इस पिलर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एम ये है कि बच्चों में एम्पैथी यानी सहानुभूति को डेवलप करना, जिसकी वजह से दे विल बिकम मोर लाइकली टू हेल्प अदर पीपल। इस पे ध्यान देना और जरूरी हो गया है क्योंकि आजकल के बच्चों का टेक्नोलॉजी के साथ टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एज आर पेरेंट्स मस्ट नो। एंड बहुत सारी रिसर्चेस में ये पाया गया है कि टेक्नोलॉजी के एक्सेसिव यूज से उनके सोशल स्किल्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है, इंक्लूडिंग द स्किल्स जिनकी हमने अभी ऊपर बात की। ओवर टू यू होनी मैम। थैंक यू सो मच सर। वी वेरी वेल अंडरस्टैंड कि कितना ज़रूरी है expression and collaboration in terms of their social growth and development. Now we come to the fourth pillar, which is compassion. मैं बताती हूँ compassion कैसे ज़रूरी है। So compassion यानी दूसरों की तकलीफ को समझना और उनके लिए सही मदद करना। Compassion means caring in action. हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं कि सबसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक अच्छा इंसान बनना उतना ही जरूरी है। जब हम एक गरीब बच्चे को देखते हैं खाना मांगते हुए रास्ते पे, तो हम हमेशा या तो उसे अनदेखा कर देते हैं या तो डांट कर भगा देते हैं। पर कंपैशन हमें ये सिखाता है कि कैसे हम उसे खाना देकर उसकी भूख मिटा सकते हैं, बिकॉज दैट इज द सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम। और हम उसकी प्रॉब्लम को समझ पाए और खाना देने से वी वर एबल टू प्रोवाइड द केयर थ्रू द एक्ट ऑफ फीडिंग एंड हेंस केयरिंग इन एक्शन। कंपैशन इंक्लूड्स 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज यानी कि गुण। आइए देखते हैं कि ये क्वालिटीज कैसे जरूरी है। सबसे पहले वी हैव ग्रैटिट्यूड। सो हम बच्चों को थैंक यू बोलना सिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो इसीलिए कि थैंक यू हम तभी बोलते हैं जब भी हमें कोई चीज़ मिलने पे हमें उसकी खुशी है और हमें ये एहसास है कि हमारे पास जो है वो कीमती है और हमें उसे संभाल के रखना है। सो दैट इज हाउ वी एक्सप्रेस इट बाय सेइंग थैंक यू। सो दैट इज ग्रैटिट्यूड। देन वी हैव काइंडनेस। काइंडनेस यानी कि दया। With kindness, we work in the direction of helping others and spreading positivity around. Third quality is empathy. Empathy मतलब दूसरों के प्रॉब्लम्स को बिल्कुल उन्हीं की तरह समझ पाना। ये क्यों ज़रूरी है? वो इसीलिए कि अगर हम उनको बिल्कुल उन्हीं की तरह समझ पाएंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स का हम बिल्कुल सही सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर पाएंगे एंड फाइनली मेकिंग इट अ बेटर प्लेस। देन वी हैव केयर। केयर मतलब देखभाल करना। जितना हम खुद की केयर करते हैं उतना ही ज़रूरी है कि हम हमारे आसपास यानी हमारे एनवायरनमेंट की और उसमें मौजूद हर एक लिविंग बीइंग यानी हर जीव की भी केयर उतनी ही करें। देन फाइनली वी हैव पेशेंस। पेशेंस यानी कि संयम। संयम के साथ बच्चे अपने काम में ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को बेहतर प्राप्त करेंगे। तो कंपैशन वो गुण है जिससे हम इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। अब इसी के साथ हम आते हैं हमारे 5th पिलर पे, जो कि हमारा लास्ट पिलर है, विच इज डिसर्नमेंट। और इसके लिए वी हैव हियर विद अस दीप्ति भागचंदानी, हु इज परस्यूइंग BA इन साइकोलॉजी फ्रॉम LD आर्ट्स कॉलेज। दीप्ति मैम, आप प्लीज हमें बताइए कि डिसर्नमेंट क्या है और कैसे जरूरी है। जरूर मैम। बट सो डियर पेरेंट्स, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या हम लाइफ में कभी भी चूज कर सकते हैं कि हम गलती ना करें। आप सब चैट बॉक्स में बता सकते हैं। Chola ma'am, can you please activate the chat box? डियर पेरेंट्स, दीप्ति जी पूछ रही हैं कि क्या ये मुमकिन है कि आप लाइफ में कोई गलती ना करें। सो आप जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए जिससे कि हमें पता चले कि ये क्या चीज है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ने ना बोला है,
अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल कि क्या हम लाइफ में कभी भी चूज कर सकते हैं कि हम दुखी ना हो? ओके, ओके। बहुत सारे पेरेंट्स का जवाब आ रहा है और सबने ना बोला है, जैसे कि ये हम सबको पता है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है, बट उन सिचुएशंस में भी हमारे अच्छे या बुरे फैसले हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम गलती ना करना तो चूज नहीं कर सकते, बट हम उन गलतियों से सीख लेना और उन्हें फिर से ना रिपीट करना, हम ये तो जरूर चूज कर सकते हैं। हमारे बच्चों को ये सिखाना कि किसी भी सिचुएशन में सबसे एथिकल, सेफ और सोशली अप्रोप्रिएट डिसीजन कैसे लिया जाए, कीपिंग द कॉन्सिक्वेंसेस इन माइंड, ये उनके पर्सनल बिहेवियर और सोशल इंटरैक्शन से जुड़े होंगे। और इनको अचीव करने के लिए हम बच्चों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से अवेयर कराएंगे और साथ ही उनको अपनी डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया जाएगा। इसी के साथ हम उन्हें ये भी सिखाएंगे कि कैसे प्रोएक्टिव प्लानिंग की जाती है और कैसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखकर कोई डिसीजन लिया जाता है। सोचिए आप सब, अगर बच्चे अपने हित में, अपने अनुसार और अपने लिए अगर डिसीजन लेना सीख जाएंगे, तो पेरेंट्स के लिए कितनी आसानी हो जाएगी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे शेयर की हमारे साथ, एंड वी नाउ प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि डिसर्नमेंट कितना जरूरी है और कितना इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। थैंक यू दीप्ति, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक होनी कि उन्होंने मेरा पार्ट आगे लेकर गई वो व्हेन आई ड्रॉप्ड ऑफ। तो चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप सब हमें बताएं पेपर क्लिप के यूजेस, पर वैसा पेपर क्लिप नहीं जो हम नॉर्मली देखते हैं। आप अभी एक सेकंड इमेज देखेंगे। पेपर क्लिप को जब हम खोल दें तब उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, आप सबको ये सोचना है और आप सब अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी सोचने के लिए। ठीक है, सो आई विल क्विकली ट्राई टू रीड। अगर मेरे पास कोई रिस्पॉन्सेज थे, सो इयररिंग्स, राइट। ठीक है, सो आई थिंक हमारे पास यहाँ बहुत क्रिएटिव पेरेंट्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ यूज जरूर सोचा। अब आगे चलते हैं कि कुछ यूजेस मैंने भी ढूंढे थे, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, हैंगर सही, बिल्कुल, एज ब्रेसलेट, राइट। वी आर गेटिंग रिस्पॉन्सेज, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक आप में से कुछ के रिस्पॉन्सेज जरूर हमें इमेजेस में भी दिखाई देंगे। हम इस पेपर पिन को एज अब जब खोल दें तो वी कैन यूज इट एज अ लूप टू टेक आउट हेयर ब्रश में से बाल। कभी डिवाइसेस में जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं उनके लिए एज अ पिन यूज कर सकते हैं टू क्लियर आवर नेल्स कभी, एंड टू यूज एज अ मोबाइल होल्डर। यस, कभी कोई ब्रेसलेट का लूप कम हो तो उसके लिए एज अ लूप यूज कर सकते हैं। फिर हम हर चीज का कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो कर ही सकते हैं, जैसे वी गॉट रिस्पॉन्सेज डेकोर फॉर होम और इयररिंग्स। हमने यहाँ क्या किया, हम सबको पता था कि एक पेपर पिन कैसा दिखता है, पर जब हमने ये सोचा कि अब पेपर पिन को खोल दें तो क्या होगा, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए, पर शायद बहुत सारे पेरेंट्स को ये सोचने में लग गए होंगे कि अब क्या करेंगे। पर हम ये भूल गए कि असल में पेपर क्लिप इज अ पीस ऑफ वायर। वो एक तार है जिसको हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। यही एक उद्देश्य है LMM प्रोग्राम का फॉर किड्स। बहुत बार हमारे जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं और हमारी लर्निंग्स हैं वो हमें हेल्प करती हैं, पर कई बार ऐसा भी होगा कि बच्चों की जो पुराने एक्सपीरियंसेस या लर्निंग है वो शायद उनको एक नई सिचुएशन में हेल्प ना करें। तो तब जब वो एक दूसरे तरीके से सोच पाएंगे, किसी नए तरीके से सिचुएशन का कोई हल निकाल पाएंगे, तब वो ज्यादा बेटर कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद की एक्सपीरियंसेस के बियॉन्ड जाएंगे, कुछ डिफरेंट सोचेंगे। लाइफ में मार्क्स प्रोग्राम यही करना चाहता है। और इसी के साथ हम हमारे थर्ड स्टेप पर आते हैं, जो कि है ड्राइंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। इस स्टेप का ये मतलब है कि बच्चे उनका जो भी उनके गोल्स हैं वो अचीव कर पाएं। तो पहले जब हमें अपना गोल कोई अचीव करना है, वी नीड टू डिक्लेयर इट। हमें बोलना पड़ेगा कि वो क्या है, ताकि हम उसको बेहतर समझें। फिर उस गोल को विजुअलाइज करना जरूरी है कि हम सोचें कि उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। एंड फिर
हम एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं जिसके हिसाब से हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। गेमिफिकेशन भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चों को गेम्स खेलनी बहुत पसंद होती हैं और अगर वो गेम्स खेलते वक्त अपने गोल के भी ज़्यादा करीब पहुंचे तो आई थिंक इसे कहते हैं हर तरफ से जीतना और हर किसी का फायदा। जब भी हम कोई गोल अचीव करने जा रहे हैं कुछ चैलेंजेस या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। जरूरी ये है कि बच्चों को पता हो कि उन चैलेंजेस को सही तरीके से देखकर रिजॉल्व कैसे करना है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट रिक्रिएटिंग योरसेल्फ। हमने बच्चों के पास्ट एक्सपीरियंसेस समझे स्टेप 1 से, उनमें अच्छे स्किल्स डेवलप करने चाहे स्टेप 2 से। अब स्टेप 3 में जब हम उनको इतना इक्विप कर रहे हैं कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएं, they will be able to recreate their selves in terms of कि वो अपने goals भी achieve कर पाएंगे and they'll be able to lead a good life. And ये सब कुछ एक बहुत ही scientific and professionals की निगरानी के अंदर होता है। That's all for step 3. Over to you, ma'am. Thank you so much, Nemat ma'am. So now, dear parents, हमने देखा कि step 1, step 2 और step 3 में क्या होता है. So here we have on your screens a summarized view of all these 3 steps. आइए एक बार हम जल्दी से ब्रीफ में समझ लेते हैं कि हर एक स्टेप में हमने क्या देखा। सो स्टेप 1 इज बेसिकली कीपिंग द क्लीन स्लेट क्लीन, जिसका मतलब है कि हम बच्चों के प्रॉब्लम्स को अलग अलग टेक्निक से आइडेंटिफाई करें। देन वी कम टू स्टेप 2 which is instilling these 5 important qualities which also called as the 5 pillars of LMM through the task cards, which are the fun and learn activities. And then finally step 3 mein we use techniques like declaration, gamification, and visualization to reach closer to their goals. Wow, Holly ma'am, LMM program looks interesting and useful. But can you explain me how does this LMM program works in Srivastav family and what changes occurred in their family? Of course I will, Priyanka ma'am. So, जैसे कि हमने शुरुआत में मिस्टर श्रीवास्तव का एग्जाम्पल लिया था, तो आइए देखते हैं कि LMM प्रोग्राम के बाद उनके बच्चों में और उनके घर में क्या क्या चेंजेस आए। So, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट कि बच्चों में यानी राहुल और रिया के बीच में गुस्सा जो है वो काफ़ी कम हो गया। वो आपस में झगड़ा नहीं करते थे, वो उनका होमवर्क भी टाइम से कंप्लीट कर लेते थे, वो उनके फ्री टाइम में बेटर एक्टिविटीज़ करते थे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती थी एंड ऑल्सो अ विन विन फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि वो उनको ग्रो करने में और डेवलप करने में हेल्पफुल थी। And then finally they started helping their parents. उनके मदर को वो उनके डेली चोर्स में हेल्प करते थे और उनके फादर को एक्टिविटीज में जैसे कि कार वॉश करना या कोई भी रिपेयरिंग का काम। And then finally it was a happy and a positive environment at that place. Thank you so much, Holly ma'am. But I still have one more question. Can you explain how did LMM program do this? I think I have an answer to this question as well. So the answer is through social emotional learning. I think we can have a better explanation कि social emotional learning क्या होता है with the help of a video. तो आइए देखें। SEEL सील को लेकर आजकल काफ़ी चर्चा है, जिसका मतलब है सोशल, इमोशनल और एथिकल लर्निंग। यह शिक्षा सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक कौशल सीखने की प्रक्रिया है। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ना और गणित सीखना है। यह सीखने की प्रक्रिया सबसे प्रभावी है जब ये बचपन से शुरू होता है और हाई स्कूल में भी जारी रहता है। सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक कौशल स्कूल, काम और जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। SEEL के साथ छात्र अपनी भावनाओं और व्यवहारों को प्रबंध करना सीखते हैं, सहानुभूति दिखाते हुए दूसरों का देखभाल और चिंता करते हैं, बेहतर तरीकों से समस्याओं का समाधान निकालते हैं, जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेंगे और अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं। छात्र ये पहचानना सीख रहे हैं कि उनके भीतर क्या हो रहा है, जिससे उनको भावनाओं को पहचानने में मदद मिलता है, जैसे कि गुस्सा करना और आवेगशील भावनाओं को महसूस करने पर रोकने में, सांस लेने में और अभिनय से पहले स्थिति के बारे में सोचने में मदद करता है।
छात्र दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण की पहचान करना सीखते हैं, जिससे वो सहानुभूति और करुणा दिखाएंगे, बिना ये देखे कि वो कौन है या कहाँ से आए हैं। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि ये क्लासरूम में और जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। छात्र शांतिपूर्ण तरीकों से अपने समस्याओं का समाधान करना और अपने आवश्यकताओं के बारे में बताना सीखते हैं। इससे वो दूसरों के साथ मिलकर रहेंगे और बड़ों से खुलकर मदद मांगेंगे। जब छात्र अपने जीवन और भविष्य के बारे में जिम्मेदारी से निर्णय लेंगे तो भविष्य सिर्फ बेहतर होगा। रिसर्च बताती है कि सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा से बदलाव आता है। सील में भाग लेने वाले छात्र पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और बेहतर व्यवहार भी करते हैं। इन छात्रों के लिए अच्छा डिग्री हासिल करने का संभावना दुगनी है। हाई स्कूल पास करने का संभावना 50% से अधिक है और 25 साल की उम्र में नौकरी मिलने का। जिन स्टूडेंट्स का सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक कौशल अच्छे हैं, उनके दोस्त भी ज़्यादा होते हैं, जिससे उन्हें स्कूल में ज़्यादा मन लगे, दोनों में सफलता पाते हैं। बहुत खूब। तो जैसे कि हमने देखा, सोशल इमोशनल लर्निंग एक प्रोसेस है जिससे हम नॉलेज एंड स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एसेंशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस, setting and achieving goals, feeling and expressing empathy, establish and maintain the relationship, and finally make responsible decisions. So, Priyanka ma'am, I hope I was able to answer to your question. Thank you so much, ma'am, for beautiful video and explanation. जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई से इतना बर्डनड होते हैं, उसके ऊपर इतना सब कुछ मैनेज करना, मतलब क्या पढ़ाई करना काफ़ी नहीं है? वेल अनुभव सर, आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूँगी। आपका ये जो कंसर्न है, ये आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स का भी कंसर्न होगा। तो इस बारे में बात करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस रिंकू मिश्रा, जो कि एक पेडागोजी स्पेशलिस्ट हैं एट GDA. ओवर टू यू रिंकू मैम। I guess Rinku ma'am will be joining us, and then she will share के कैसे LMM और education बच्चे की Yes, एक Rinku साथ ma'am जा is here. Yeah. I was on mute. So, yeah. So very good evening, all the parents. So today I'm going to talk with you about the new education policy and how it is already integrated with new LMM. So LMM is not just an application. It is more than that. It is going to change your life, your children's life, everyone's life, and it is going to for sure help in nation building. So today I'm going to discuss few aspects जो LMM में है and which was also recommended by NEP. And before the recommendation of NEP, we have already integrated this in our LMM structure. So few of the things I'm going to discuss with you today. The first among this is the vocational education. Now, what is vocational education? There are different skills like carpentry, music. Okay, all these skills are very, very important in everyone's life. And students these days, they don't get chance to explore all these vocational aspects in their school life. So as per NEP, ये डिसाइड किया गया है कि राइट फ्रॉम ग्रेड 6 बच्चों को ये सिखाया जाएगा, ये स्किल्स उनके अंदर इंटीग्रेट की जाएगी. And with LMM, it is, LMM, it is a base to explore the arena of various vocations at the school level. Next is the quality early education. The age between 3 to 6 years is very, very sensitive. And बच्चे बचपन से ही ये values अपने अंदर integrate करना सीखेंगे with the help of LMM. Next is the new curricular. New curricular is and the pedagogical structure is 5+3+3+4, and the old was 10+2. Now this with the help of integration of LMM and EMM,
it will be the smooth journey of your child right from childhood to grade 12. Next is the holistic development of the child along with academic and non-academic spheres of each and every child. Now at GDA, LMM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक बच्चा अपनी हर एक एबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है with the help of LMM. Next is the conceptual understanding rather than just the rote learning. You know, the previous policy was focusing more on the rote learning. And at GDA, when we are actually teaching the concept, we are not just teaching the concept. Students are exploring the concept because we are using research-based methodologies that is integrated in our day-to-day teaching learning process. So it is just more than learning. It is the concept learned by students for their life. Next is creativity and the critical thinking, and also the logical decision making with the help of different task cards that you have seen, with the help of different pillars of LMM you have seen. All these skills will be easily integrated and inculcated easily without any pressure. And students at the end, they will feel happy about to be the part of this LMM. Next is the extensive use of technology. As per NEP, it has been recommended that every school should be technology integrated and techno-savvy. And we are already fulfilling this requirement because we are using technology at a larger extent, inside out, in our teaching learning process also. And this LMM also, it is useful in order to enhance all these skills. And here technology is playing the vital role. Sitting at home, children will be able to submit the task card, and that is possible because of technology. Next is respect for diversity and respect for local context in the curriculum. You know, in the country in which we are living, we are belonging to different culture, different caste, people belonging to different states speaks different language, eat different food. So all this, you know, differences, the students will be able to, you know, respect this with dignity, and they will definitely promote integrity with LMM in their life that will fulfill their need of respecting each other along with promoting integrity. Next is regular reports are being sent to the parents, the stakeholders, each and every report related to LMM, their curriculum, the non-academic reports, all, each and everything is sent to the parents. So there is a smooth flow of information flowing from school to parents as and when required. And this is already recommended by NEP. Last but not the least, as per NEP, it has been recommended that every school should have a counselor. And the role of the counselor will be to guide students in their social, emotional, vocational, and personal guidance. And with the help of LMM, we have clinical psychologist, Mr. Mansoor sir, and also wonderful LMM team. So these were few of the aspects that were highlighted in the NEP 2020, and we have already integrated this in our LMM program. So I'm very, very happy that your children are in the very safe hands, and they are definitely going to help in the nation building. Thank you, ma'am. Over to you, sir. Huni ma'am, thank you, Rinku ma'am, for the wonderful insights about national education policy. Huni ma'am, can you please take over? Sure, sir. So I would like to invite Priyanka to introduce the next speaker. Yes, Honi ma'am. Now it's time for the interesting part of the program, that is the LMM app live demonstration. I would like to invite Ms. Chawla Pathak, Manager, Social Media and Data Footprint at GDA. Over to you, ma'am. Yes, thank you, ma'am. And good evening, all parents. Thank you for joining in. So, हमारी सॉफ्टवेयर टीम ने काफी इंटरेस्टिंग एंड यूजर फ्रेंडली वेब ऐप क्रिएट किया है. So, चलिए देखते हैं कि आप ये वेब ऐप कैसे यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए. Okay, so as you can see, this is our home page of the LMM web app. यहाँ पे you can see login button where there are three options. I am a teacher, I am a parent, and I am a counselor.
सो पेरेंट्स को सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है, दैट इज आई एम अ पेरेंट. Now we have to log in from here. We will be giving login ID and password to all parents. I'm just showing you by logging in from one of the parents' ID. लॉगिन करने के बाद ये हमारी होम स्क्रीन रहेगी. दिस इज द पेरेंट मिस्टर हार्दिक पटेल. इनके दो बच्चे हैं, भव्या पटेल एंड शिवांश पटेल. वन इज इन ग्रेड 3 एंड वन इज इन नर्सरी क्लास. सो जैसे हमारी लाइफ कोच टीम ने आपको बताया LMM पिलर्स के बारे में, लाइक सेल्फ अवेयरनेस, ग्रीड, कंपैशन. So based on the each LMM pillar, we will be assigning task card at regular interval basis. So suppose I am selecting one of the task card here from self awareness pillar. Suppose I am selecting thinking brain. So parents को यहाँ पे view detail button दिखाई देगा, वो click करना है. After clicking view detail, parents will be able to see the description part of that task card. So whole description will be displayed over here, like what is the goal of this task card, description, any kind of material is required or not, the detailed instruction, what will be the duration of the task. So each and every little thing will be described over here, so that parents will be able to understand the task in a better way, और वो बच्चों को भी काफी अच्छी तरीके से समझा पाएंगे. सो जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया हुआ है. सो इसी तरीके से सारे पिलर LMM पिलर के बेस पे सारे टास्क कार्ड हम असाइन करेंगे एट रेगुलर इंटरवल. नाउ एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द टास्क कार्ड, बच्चे कैसे इन्वॉल्व रहते हैं टास्क कार्ड के दौरान, एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग द टास्क. So if parent wants to give any kind of feedback for the particular task, they can give select this give feedback button and click on that. यहाँ पे कुछ pre-defined statement देख पाएंगे parents, like my child was able to complete the task with very little prompting. I noticed that my child's interest in the activity grew as activity progressed. So ये predefined statement के नीचे you can see 4 options: strongly disagree, unsure, agree, and strongly agree. So parent can select one of the option and submit. At the end, parents can add the comments also, so that it will be helpful for our life coach team, so that any kind of help is required for that child, so that they can perform from their end. So this is about the task card, how parents will be able to see the task card and get the detail. अभी task card को submit कैसे करना है, that is the next question. So let's go to the submission part. So उसके लिए हमने एक simple Google form create किया हुआ है. आपको ये Google form के access मिलेंगे. In that Google form you will be able to see the submission instruction video also. ये काफी simple form है, उसमें कुछ like general instruction रहेगी. We will be providing student ID also to each student. So parent needs to enter the student ID, name, class in which student is studying, कौन से pillar के लिए ये आप task card submit कर रहे हैं, task name, and upload the task. So from here the add file, you will be able to upload the task and submit. So this will directly reach to our life coach team and teachers, so that they will get to know that okay, this student has submitted the task. So this is about the submission part, and coming to the last part, that is very interesting for our students, that is about students online diary. So we will be having this student online diary app on our Android device. There will be few predefined question and statements will be there. We will be also providing student login ID and password, from which student needs to log into the app. Also, students can log in, they can set the 4-digit PIN also, so that only they will be having the access of their online diary. Even parents also won't be able to see what they have written in their online diary. It is very restricted to our life coach team, not also teachers will be having access. So this will be very restricted part. So there will be few predefined questions and statements for which students can give answers in online diary.
ऑल्सो फ्यू स्टूडेंट्स आर वेरी इंट्रोवर्ट, कुछ बच्चे काफी इंट्रोवर्ट होते हैं जो जल्दी से अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते। सो वो बच्चे भी यहाँ ऑनलाइन डायरी पे जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। There will be calendar part also, like students अपने previously submitted part भी देख सकते हैं कि अच्छा ये डेट पे मैंने ये डायरी में ये लिखा था। So previously submission part can also be viewed by students. और ये ऐप की खास बात ये है that AI, that is artificial intelligence, that will capture the negative sentiments also. Like अगर डायरी राइटिंग में कहीं भी नेगेटिव सेंटिमेंट ट्रिगर होता है, सो वो तुरंत AI will prompt that to our life coach team, so that any kind of intervention or any help is required to the student, they will be able to perform from their end. So this is about the student diary app. So for parents and students, these two things are available, that is web app and student app. I'm sure many questions will be there in parents' minds. So we have created one small FAQ also. So Honey ma'am, if you can share that part of FAQ of parent app. So we will be providing all the detail as you can see on the screen. Also, if you are having any questions apart from this, you can write in the chat box or you can raise your hand also. Yes, over to you, Honey ma'am. Thank you so much, ma'am. I would like to stop sharing. I hope all of you have referred through the slide. I have had few questions in the chat box saying there were few requests from the parent side regarding the language part. So I would like to apologize for all those जिनके लिए हिंदी समझना थोड़ा सा, for whom the Hindi language would have been acted as a barrier. But keeping in mind the majority of the population and the most comfortable language, we decided on keeping it in a way which is understandable for the parents who understands Hindi and English as well. So, but yeah, we will, if there are any more suggestions, we are open to take that. And I would like to hand over the session to Mansoor sir, if he wants to add on anything. Right. I would just like to add to Chola ma'am's part in the diary. So basically, we have seen that a lot of successful people actually write diary. And it's a good habit to actually inculcate during the developing years. There are certain confidentialities that we keep in mind, but whenever a child is writing something which is actually might create trouble for the child in terms of the environment, probably अगर कुछ ऐसी चीज है जो communicate करनी चाहिए parents को, तो we will definitely reach out to the parents and communicate that information. So that is in place, and we have a very active team that is actually working on the diary part. Just to summarize what we have covered so far, as you all know कि आप सबने देखा कि key components actually life marks program की क्या है, तो basically comprise करते हैं कि erasing the past limiting experience of the child, developing skills like compassion या फिर हम करुणा कह सकते हैं, सूझबूझ है, resilience है, self awareness, interpersonal skills and methods that help the child to achieve their dreams. And you also know that we are also providing services to children to help them grow and realize their potentials. We have a team of experts specializing in clinical psychology from the reputed institutes for this. Lastly, I would like to share that we have special services in place to help the child. कोई भी ऐसे इशू है, attention problems है, बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है या फिर बात करने में दिक्कत आ रही है, कभी आपको ऐसा लग रहा है या फिर आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि expedite करना है उसका process of growth. So we have a qualified team to actually help you out in that phase. I think so Nemat ma'am will be able to better throw some light on this. Yes. Nemat, can you please I will just take a moment and share the screen. Sure, sir. जैसे कि आपने बताया कि काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है LMM प्रोग्राम का. मेरे कलीग अनुभव ने भी इसकी बात स्टेप 1 में की थी. सो बहुत बार एज एडल्ट्स हमें बहुत सारी चीज़ें आसान लगती हैं, हमारे लिए वो सिचुएशंस डिफिकल्ट नहीं होती, बट फॉर किड्स, फॉर बच्चों के लिए वो सिचुएशन हार्ड हो सकती है और इतनी शायद आसान ना हो.
लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में बच्चों के जो बेस्ट फ्रेंड है वो स्कूल छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट की ट्रांसफर हो गई होती है, या कभी कोई बच्चा किसी स्कूल में नया है, सो एक न्यू एनवायरनमेंट है, न्यू टीचर्स, और वो बच्चा शायद अपने पुराने क्लासमेट्स को, अपनी पुरानी क्लास को मिस कर रहा होगा। तो ऐसे में अगर वो बच्चे अपने स्कूल काउंसलर की हेल्प लें, उनसे बात करें, तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। जो काउंसलर है ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड उनके जो कंसर्न्स हैं, इमोशंस, बिहेवियर और उनकी सिचुएशन। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनको सही कोपिंग स्ट्रैटेजी से भी इक्विप कर सकते हैं, जिससे वो बच्चे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन और आगे आने वाली ऐसी और भी जो सिचुएशंस होंगी उनको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये काउंसलिंग सर्विसेज बच्चों को हेल्प करेंगी उनकी अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए, ऑल्सो उनमें सही कोपिंग स्ट्रैटेजीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको सिखाकर हम बच्चों को बेटर इक्विप करेंगे ताकि वो आगे आने वाली जितनी भी सिचुएशंस हो उनको अच्छे से हैंडल कर सकें। That's all for the counseling services. Over to you, ma'am. Thank you so much, ma'am. There are a few questions regarding the application also. Like, there is a question, I can read it out loud. It says age group was suggested 3 to 6 years. What about others? So ma'am, sir, I would like to specify here that the demonstration which we presented in front of you was an example. So we have it designed for different classes starting from 3 to 8 grade. So there will be task cards particularly designed in all 5 pillars, in all the 5 domains for all these above mentioned classes. So I hope that is clear, and I will now hand it over to Mansoor sir if you want to take up. I would just like to add to that. So basically we have designed specialized task cards for every grade. So यहाँ पे team from Nimhans and Tata Institute, which initially created the task cards, they were specially designed to understand कि बच्चे का क्या ability है, cognitive level क्या है, उस हिसाब से हमने हर एक grade के हिसाब से task card design किया है। आपको जो दिखाया गया था, basically it was just an example, but every grade from right from 3rd standard till 8th standard will receive a particular task card, and which probably activities that they have to do in the home environment. Yes. Okay. Sir, there is also a question asking, is the application developed by GDS itself? Yes. Nikhil, would you like to take that question up? Yes, this is an application, developed by our own team, and there will be many updates in this application, which you will love it. I'm very sure about that. That will actually empower us as parents, as educators, to understand our children better, help our children better, and also give an opportunity, a lot of challenges to our children to build these qualities. You know, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, ऐसा कोई बच्चा होता है जो साइकिल एक ही बार में चलाना सीख जाएगा? 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार तो गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। तो चैलेंजेस, बच्चे के सामने वो चैलेंज रहता है, वो चैलेंज बच्चे के सामने बढ़ाते जाना, छोटी साइकिल, बड़े साइकिल और बड़ी साइकिल। और ये सारी ये एप्लीकेशन हमें बहुत एम्पावर करेगा कि हम एक्चुअली LMM को बहुत अच्छे से हमारी लाइफ में, बच्चों की लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएं और इसके फुल बेनिफिट्स ले पाएं। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। धीरे धीरे इसमें अपडेट्स आते जाएंगे, आवर टीम इज वर्किंग ऑन दैट। बहुत सारे सर्विसेज जो अभी मेंशन किए हैं उसको और डिटेल में आप सबको हम ईमेल के थ्रू भेजेंगे। बहुत सारे डिटेल्स हम आपको ईमेल के थ्रू भेजेंगे, जिसमें आप कैसे लॉगिन करना है, कहाँ से आप एप्स को एक्सेस कर सकते हैं, किस लिंक से आप एप्स पे जा सकते हैं, कैसे बच्चों की डायरी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी आपको ईमेल के थ्रू कुछ ही दिनों के अंदर। आपको लॉगिन आईडीज भी मिलेंगे, पासवर्ड्स मिलेंगे, आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। मीनवाइल आप जब भी अगर आपको लगता है आप काउंसलर से बात करना चाहते हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं अपने क्लास एजुकेटर्स को,
या स्कूल में प्रिंसिपल सर या जो जनरल मैनेजर सर हैं उनको, और ये जो भी आपकी है इशू है वो आप बता सकते हैं, या जो आप बात करना चाहते हैं कुछ जिस भी चीज के बारे में लाइफ कोच से, वो आप उनको बता सकते हैं। वो आपको लाइफ कोच के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप बातचीत करके डिस्कशन करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो पेरेंट्स, हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीज़ों पे अटेंशन दें। नाउ टाइम इज हियर, वी हैव एवरीथिंग विद अस, वी हैव टू गिव सपोर्ट to the fullest, we have to do our best and our children will do their best. Okay, I think with this I think we can go towards closing this Saturday evening session. Before that, we want you to take 2 minutes out and give us some feedback about this session. Mansoor sir and Chala ma'am, can you paste the link? So you will see the link in the chat box. Just take 2 minutes out. Your feedback will be blessings for us. We will work on those feedbacks. We'll make it much better next time. So please take 2 minutes out and send us your feedbacks. Sir, there are few questions. Can we take them? Yes, yes. All right. So there are few asking about the name of the application. Okay, that will come in the detail. The name of the application is LMM app. That will come in email to you. So you need not to worry about that. Everything will be dispatched to you with via emails. Yeah. Next question. Yes, sir. Next question is how much time in a day will be required by student? That will be guided in a schedule. Every activity has a defined time in itself. It is around 10-15 minutes. Most of the activities are like dinner table activity, which you can start now. You must have learned something. You can start today itself when you are going to have dinner tonight. Talk about this with your children and start now, and then you will see different activities that will help us build different qualities, different pillars in our children. Any other question? Yes, sir. There's one which asks, is school going to allocate time in the regular syllabus for LMM? Yes, we are continuously thinking and experimenting about this. We are thinking if we can have a LMM period also, which will actually be very focused towards developing these qualities. And I think we are still testing it, but most probably then parents can also support our children. Yes. There was one question earlier, sir, but I suppose I've already answered to it. There was a parent asking how to reach out to the specialists, the counselors. Okay, I think we have answered that question too. Right, sir. Yeah. Very soon we will develop a chatbot and more features. So through the technology, you will be able to reach out directly to the counselor. For some time, reach out via class educators or school staff. That is all, sir. Thank you so much, parents, for all the questions. We hope we were able to deliver all the answers to your queries. Thank you so much, Nikhil, sir. Okay. So parents, make sure that you fill in the forms. That will help us, and eventually we all are family and we have to raise our children, right? And that's going to help our noble cause, the mission that we have. And I want to thank
I want to take this opportunity to thank all the parents joined from various cities from Halol, Baroda, Hyderabad, Odisha, many places in Odisha and Aurangabad. And the diversity is there, and still we all are connected for one noble cause, that is raise our children right. And I can feel that, I can already feel that how it's going to happen now. And I will look forward to hear from parents how LMM is doing, how LMM is bringing transformation, and take help of our life coaches that will help our children coach for essential things needs to be done in life. Thank you everyone for joining in. Thank you entire team for this beautiful work, beautiful creation for our children, for our parents, and for our educators. I want to invite Pankaj sir, if you want to add anything to it before we end this Saturday evening session. This is an investment that all the parents, all the educators are doing for our children one Saturday evening. And this will be marked in history that Saturday evening. That is true. That's my main message. कि आज का दिन याद रखा जाए, एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है और इसका इफेक्ट एक पूरी जिंदगी पे पड़ेगा. Let's be sincere about it and have commitment for your child's life. Rest will fall in place. Thank you. Have a beautiful rest of the evening. Good night. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for joining. You can still comment in chat box. Thank you so much.